بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریا میری منگیتر تھی۔ ہمارا رشتہ اس وقت طے ہوا تھا جب ہم دونوں اسکول میں ایک ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ تب وہ لوگ یہیں کراچی میں رہتے تھے۔ ریا میری خالہ کی بیٹی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، جبکہ ریا کی ایک چھوٹی بہن نور تھی جو کہ ریا سے 10 سال چھوٹی تھی۔ خالہ، خالو، ریا اور نوریا 4 ہی فیملی ممبر تھے۔ خالو امریکہ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ خالہ بھی فیشن ڈیزائنر تھیں، اپنا بوتیک چلاتی تھیں۔ ریا اور میں نے اکٹھے ہی میٹرک کیا تھا۔ ہم اس وقت 16 سال کے اور نور 6 سال کی تھی جب خالو نے ریا، نور سمیت سب کو امریکہ بلوا لیا۔ میں ریا کے جانے سے بہت اداس تھا کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بچپن سے رہنے کی عادت تھی۔ ریا بھی خوش نہیں تھی۔ امریکہ جانا بہرحال مجبوری تھا، وہ چلی گئی۔ شروع میں تو وہ مجھ سے روزانہ فون پر بات کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس نے فون کالز کا سلسلہ کم اور پھر بالکل ہی ختم کر دیا۔ تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ عزت نفس تو سب کو ہی عزیز ہوتی ہے۔ لیکن امی لوگوں کا خالہ خالو سے رابطہ تھا، انہی سے ساری خبریں معلوم ہو جاتی تھیں۔ ریا انجینئرنگ کالج اور نور اسکول میں تھی۔ خالہ بھی کسی فیشن ڈیزائننگ کمپنی میں جاب کرتی تھیں۔ ریا کو میں نے اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر فالو کر رکھا تھا۔ وہاں اس کی نئی نئی پکچرز دیکھ کر مجھے اس کے بدلنے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ ٹاپ سکرٹس جیسے ملبوسات، نت نئے انگریز دوست، امریکہ کی آزاد فضا میں جا کر وہ بالکل ہی آزاد ہو گئی تھی۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اسے اب مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، لہٰذا شادی تو بہت مشکل ہی لگ رہی تھی، مگر پھر ہماری فیملیز کی طرف سے یہ رشتہ برقرار تھا۔ لیکن مجھے کوئی ایسی خوش فہمی یا امید نہیں تھی۔ میرا فوکس سنجیدگی کے ساتھ ساتھ اپنے کیریئر پر تھا۔ پھر ایک دن اچانک نور کے مرنے کی خبر موصول ہوئی۔ محض 16 سالہ نور کی اچانک موت نے ہم سب کو بہت دکھی کیا۔ نور کی موت کی وجہ تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکی، مگر خالہ کی فیملی بہت صدمے میں تھی۔ خاص طور پر ریا کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ نور کی موت کا ریا نے بہت اثر لیا ہے۔ پورا ہفتہ وہ ہاسپٹل میں داخل رہی تھی۔ نور کی موت کے 3 مہینے بعد خالہ کی فیملی واپس پاکستان آ گئی۔ اتنے سالوں بعد ریا کو دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ یہ وہ شارٹ سکرٹس پہنے والی ریا تو نہیں تھی جس کی پکچرز میں اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر دیکھا کرتا تھا۔ یہ تو صدمے سے نڈھال کوئی اور ہی ریا تھی۔ مجھے اس کی بے رخی، اجنبیت کچھ بھی یاد نہ رہا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ بہت دکھی ہے اور ہمیں اس کا دکھ بانٹنا ہے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ خالہ خالو اس کے لیے پاکستان آئے ہیں کہ ریا کی شادی مجھ سے کر سکیں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ریا نہ صرف میری منگیتر تھی بلکہ بچپن کی پسند بھی تھی۔ لیکن مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ریا کو زبردستی اس رشتے میں مجبور کیا جائے۔ لیکن جب ریا نے خود مجھ سے آ کر کہا کہ اسے مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، تو پھر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر 2 دن کے اندر اندر سارے انتظامات مکمل کر کے ریا اور میرا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ خالہ خالو ہمارے نکاح کے فوراً بعد واپس امریکہ چلے گئے تھے۔ میں ریا کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن وہ کچھ گمسم تھی، شاید نور کے صدمے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت مجھے ایسا ہی لگا کہ وہ نور کی وجہ سے ہی اتنی اپسٹ ہے، اس لیے میں نے اسے پیار سے سنبھالنے کی پوری کوشش کی، مگر ریا کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی میرے ساتھ اچھے سے پیش آتی اور کبھی مجھ سے کترانے گھبرانے لگتی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ کبھی کبھی تو میرا چھونا بھی اسے ناگوار گزرتا تھا اور وہ بدک جاتی تھی۔ یہ چیز ایک مرد کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے چھونے پر ناگواری دکھائے۔ پہلے میں ریا کے رویے کو نور کی موت کا اثر سمجھتا رہا، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ بات نہیں ہے۔ میرے مائنڈ میں عجیب سے خیالات آنے لگے تھے۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہو گئے تھے، مگر ان 4 مہینوں میں میں نے اسے ایک بار بھی خوش نہیں دیکھا۔ مجھ سے کترانا، گھبرانا، اور پھر میں نے نوٹ کیا وہ 24 گھنٹے اپنے موبائل کو اپنے پاس رکھتی تھی۔ اگر چارجنگ پر لگا ہوتا تو وہ پاس بیٹھی رہتی۔ میری موجودگی میں نے اپنا موبائل کمرے میں چھوڑ کر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے میں نے کال پر کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے تو نہیں سنا، لیکن اس کے موبائل میں کچھ تو ایسا ضرور تھا جسے وہ مجھ سے چھپاتی تھی۔
हमारे बेडरूम के अलावा घर में एक छोटा सा कमरा था जिसको रिया ने अपने कब्जे में लिया हुआ था। वो उसको ताला लगा कर रखती थी। मैंने चंद बार ऑफिस से वापसी पर नोट किया कि अगर उस रूम का दरवाज़ा खुला होता तो मुझे देखते ही वो फ़ौरन बंद कर लेती थी। मैंने चंद बार उस रूम में जाने की कोशिश की, मगर रिया ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि वहाँ आपके काम की कोई चीज़ नहीं, वो मेरा पर्सनल कमरा है जहाँ मैं तन्हा रहकर वक्त गुजारती हूँ, इबादत करती हूँ, लिहाजा मैं इस कमरे में ना जाऊँ। एक बार मैंने ऐसे इसरार किया तो रिया ने मुझे अपनी कसम देकर रोक दिया। उसके बाद मैंने कभी रिया से उस रूम में जाने का नहीं कहा। पहले पहले तो समझता रहा कि वो जो कहती है सच ही होगा, मगर फिर एक दिन अजीब सा वाक़या हुआ जिससे मेरे दिल में रिया के लिए शक पैदा हो गया। हुआ कुछ यूँ कि मैंने उसे ऑफिस से फ़ोन किया कि वो तैयार रहे, हम शॉपिंग पर चलेंगे। लेकिन जब मैं घर आया तो मुलाजमा से पता चला कि वो अकेली ही शॉपिंग पर जा चुकी थी। मुझे बहुत हैरानगी हुई। मैंने उससे फ़ोन किया तो उसने नहीं उठाया। खैर, मैं उसका इंतज़ार करता रहा। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में जो शॉपिंग बैग्स थे उनमें से 2-3 उसने अपने उसी कमरे में जाकर रख दिए और बाकी हमारे बेडरूम में। मुझे ताज्जुब तो हुआ कि इन बैग्स में ऐसा क्या ख़ास था जो वो मुझे नहीं दिखाना चाहती थी। खैर, इससे ज़्यादा हैरत और गुस्सा उसकी उस हरकत पर था कि जब मैंने उसे फ़ोन करके कहा था कि शॉपिंग पर चलेंगे, फिर उसने मेरा इंतज़ार क्यों ना किया, अकेली क्यों चली गई। ये सवाल मेरे माइंड में चल रहे थे। फिर जब मैंने उससे अकेले जाने की वजह पूछी तो वो खामोश रही। उसने कोई जवाब न दिया, लेकिन मेरे माइंड में शक का नाग कुंडली मार कर बैठ गया। कभी कभी वो मुझे एबनॉर्मल लगती और कभी लगता बिल्कुल ठीक है, जानबूझकर ऐसा करती है। मैं 10 दिन के लिए उसे अकेला छोड़कर किसी काम से लाहौर गया। जब वापस आया तो मुलाजमा से रिया की तबीयत के बारे में जब मैंने अलहदगी में पूछा तो उसने मुझे कुछ चौंका देने वाली बातें बताईं। उसने कहा कि रिया सारा दिन घर में घूमती और ख़ुद से बातें करती रहती, मगर अंदाज ऐसे होता जैसे उसके साथ कोई और भी है। कमरे में जाती तो दरवाज़ा लॉक करके अंदर किसी से बातें करती, खाना नाश्ता सब कमरे में ही मंगवाती, और वो भी 2 लोगों का। बाहर से कोई चीज़ ऑर्डर करती तो वो भी 2 लोगों के लिए करती। मुलाजिमा ने इसी तरह के कई इंकशाफात किए जिनको सुनकर मैं हैरान हुआ। क्या रिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा था? क्या रिया मुझे धोखा दे रही थी? इसी तरह से बहुत से ख्यालात मेरे माइंड में चल रहे थे। मैं उन सवालों के जवाबात चाहता था, मगर रिया से बराह रास्त पूछ भी नहीं सकता था। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत होती थी कि लगता ही नहीं था कि वो ऐसी कोई घटिया हरकत कर रही होगी। फिर एक और अजीब बात हुई। रिया मेरे साथ टेबल पर बैठकर ना खाना खाती और ना नाश्ते के लिए आती, बल्कि उसने मुझे कंपनी तक देना छोड़ दी थी। मैंने जब उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि उसे रात को कोई वजीफ़ा पढ़ना होता है, जिसकी वजह से वो पहले खाना नहीं खा सकती। रात को 3 बजे वजीफ़े के बाद ही वो खा सकती है। जब मैंने सवाल किया कि किस चीज़ का वजीफ़ा, तो उसने कहा कि वो ये नहीं बता सकती क्योंकि नेकियां बताई नहीं जाती। उसका ये जवाब मुझे उलझन में मुब्तला कर देता था, लेकिन उसने कभी उस जवाब की वजाहत नहीं की। दिन को मैं ऑफिस में होता, मुलाजमा के मुताबिक रिया सारा दिन घर में चक्कर काटती रहती और मुंह में बुड़बुड़ाती रहती, या फिर ज़्यादातर उस कमरे में बंद रहती। फिर शाम को जब मैं घर आता तो रिया उस कमरे से बाहर निकल आती और उसे ताला लगा देती। फिर मेरे सामने नॉर्मल रहती, मगर ना तो मेरे साथ खाना खाती और ना कहीं बाहर घूमने जाती। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था और मुझे इसका जवाब चाहिए था, मगर किससे पूछता? रिया या तो सिरे से जवाब देती ही नहीं, अगर देती तो ऐसा देती कि उलझा कर रख देती। मुझे बड़ा ताज्जुब होता जब रात को वो खाने की ट्रे उठाकर उस कमरे में चली जाती और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देती। पूरी रात न जाने वो कौन से वजीफ़े पढ़ती। उसकी वापसी फिर सुबह ही होती थी। शक के साथ साथ मुझे तजस्सुस भी होता। फिर एक रात रिया के जाने के बाद मैं भी चुपके से उस कमरे की तरफ चला गया। दरवाज़ा तो बंद था, ताहम रोशनदान से मैं अंदर झांक सकता था। एक कुर्सी दरवाजे के साथ रख कर उस पर चढ़कर जब मैंने अंदर झांका तो हैरत के मारे मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। फिर तेज़ी से मैं वापस बेडरूम में गया, वहाँ से दूसरी चाबी उठाई और वापस आकर हॉल में लगा दी। उस कमरे की 2 चाबियाँ थीं, लेकिन रिया की दी हुई कसम की वजह से मैं कभी खोल कर अंदर नहीं गया था। मगर आज जो कुछ मैंने देखा
तो उसके बाद फिर रिया की दी हुई कसम भी मुझे ना रोक सकी। जो कुछ मैंने अंदर देखा उसके बाद मुझे यकीन हो गया था कि मेरी रिया ठीक नहीं, मुझे उसे हर हाल में बचाना था। फिर जब ज़बरदस्ती मैं रिया को उस कमरे से बाहर लाया तो वो रोते रोते बेहोश हो गई। होश में आने के बाद वो खामोश थी, मगर मुझसे अब उसकी खामोशी मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। इसीलिए मैंने उसे झंझोर डाला और चिल्लाकर कहा, रिया तुम्हें आज मुझे हर हाल में बताना होगा। बोलो, क्या किया तुमने? किस चीज़ का तुम्हें दुख है? बताओ मुझे। मैंने जब सख्ती से पूछा तो वो चुप न रह सकी और फूट फूट कर रोते हुए बताने लगी, जब 7 साल पहले हम अमेरिका गए तो शुरू शुरू में तुम्हें सबको और अपने घर को बहुत मिस करती थी। मेरा अमेरिका में दिल नहीं लगता था। मामा बाबा ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और नूर का स्कूल में। मेरा कॉलेज में दिल न लगता क्योंकि मेरी रिजर्व नेचर की वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं था। फिर मैं तुमसे बातें कर लेती तो दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता। कॉलेज के बाद वापस घर आती तो नूर भी स्कूल से आ चुकी होती। हम दोनों मिलकर खेला करते थे। माँ पापा अपनी जॉब्स में बिजी रहते थे, उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं होता था। मैं उनकी मजबूरी समझती थी क्योंकि अमेरिका जैसे महंगे मुल्क में सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खैर, मामा चूँकि बहुत बिजी रहती थी इसीलिए उन्होंने नूर की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मुझ पर डाल दी थी। नूर भी मुझसे बहुत अटैच थी। घर में सारा वक्त वो मेरे साथ रहती थी। वक्त गुजरता गया। रफ्ता रफ्ता कॉलेज में मेरे दोस्त भी बनते गए, जिनमें जैनी और मार्क सरहे फहरिस्त थे। जैनी ने मुझे मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। उसी के इसरार पर मैंने शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना, क्लब्स में जाना, शराब और सिगरेट नोशी शुरू कर दी। मामा पापा ने मेरे बदलते हुए रंग ढंग देखे मगर कहा कुछ नहीं, जिससे मुझे और शय मिली और मैं मज़ीद बिगड़ती चली गई। मैंने बॉयफ्रेंड्स भी बनाना शुरू कर दिए। मैं उनके साथ घूमती रहती मगर किसी को भी मैंने लिमिट क्रॉस नहीं करने दी। मामा पापा घर पे नहीं होते थे और नूर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी होती थी, मगर मुझे अब क्लब्स, पार्टीज़ और बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने की आदत पड़ चुकी थी। इसीलिए घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, मगर नूर को साथ लेकर उन जगहों पर जाना भी सही नहीं लगता था क्योंकि वो भी कम उम्र थी। दूसरा, उसे घर में अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि नूर को अकेले रहने में डर लगता था। सो उसका हल मेरी एक इंडियन दोस्त कल्पना ने निकाला। मैं नूर को उसके घर छोड़ देती। घर में उसका भाई और माँ होते थे। उसका भाई नूर का हम उम्र था। दोनों के सब्जेक्ट सेम थे, लिहाजा स्टडी के हवाले से नूर और वो आपस में बोल लिया करते थे। मैं भी बेफिक्र होकर नूर को वहाँ छोड़ दिया करती थी कि नूर कल्पना के भाई के साथ अकेली तो नहीं, साथ में उसकी अम्मी भी तो हैं। यही अंधा यकीन किया मैंने, जो पाश पाश हो गया। एक दिन हम सब फ्रेंड्स ने रात को पार्टी का प्रोग्राम बनाया। हमेशा की तरह नूर को मैंने कल्पना के घर छोड़ा। कल्पना की मम्मी और भाई घर पर ही थे। हम सब आधी रात तक पार्टी करते रहे। जब वापस आई तो नूर को रोते हुए पाया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि कल्पना के भाई ने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया है और कल्पना की माँ भी इस खेल में शामिल थी। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मामा पापा 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। मैंने नूर से कहा कि वो हरगिज़ इस बात का जिक्र उनसे ना करे। नूर ने मेरी बात मान ली। मुझे शदीद दुख था अपनी लापरवाही का कि मैंने कल्पना के घर क्यों छोड़ा था नूर को। ना उसे छोड़ती ना ये सब होता। उस वाक़े ने नूर को बीमार कर दिया था और वो गुमसुम रहती या रोती रहती। मामा पापा नूर की वजह से परेशान थे मगर असल हकीकत से नावाकिफ़ थे। नूर सख्त बीमार हो गई मगर इससे पहले उसका इलाज होता वो अचानक एक रात खामोशी से मर गई। किसी को पता नहीं था कि वो क्यों मर गई, सिर्फ मैं जानती थी। नूर की मौत ने मुझे तोड़कर निढाल कर दिया था। मैं दिन रात गिल्ट का शिकार रहती। मामा पापा मेरी वजह से शदीद परेशान हुए तो मुझसे बर्दाश्त न हो सका और मैंने उन्हें सब बता दिया, मगर उन्होंने मुझे कुछ न कहा। पापा ने कल्पना के भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई तो मालूम हुआ वो नूर की मौत से एक दिन पहले एक्सीडेंट में मर चुका है। मैं नूर की मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हुए इस सदमे से बाहर नहीं आ रही थी तो मामा पापा मुझे यहाँ ले आए और आपसे शादी करवा दी। मगर मुझे यहाँ भी हर जगह नूर नज़र आती है। मैं उसके साथ बातें करती हूँ, उसे खाना खिलाती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो मेरे साथ ही है। उसको मर्दों से डर लगता है,
اسی لیے آپ کے آفس سے آنے کا جب ٹائم ہوتا ہے تو میں اسے اس روم میں بند کر دیتی ہوں۔ رات کو وہ چونکہ اکیلے سونے سے ڈرتی ہے، اس لیے میں اس کے پاس جا کر سو جاتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ کھانا کھاتی ہے۔ یہ وہ ریا بہت ساری باتیں کیے جا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب وہ خیالوں میں فرض کرتی ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ساری حقیقت جاننے کے بعد میں نے بڑی مشکل سے ریا کے ذہن سے یہ بات نکالی کہ نور کہیں نہیں ہے، وہ مر چکی ہے۔ جو ریا دیکھتی محسوس کرتی ہے وہ اس کا محض خیال ہے۔ میں خود بھی اسے سمجھاتا رہتا اور سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے کر جاتا۔ بالآخر پورے 6 مہینے لگے مجھے ریا کو بالکل نارمل حالت میں لانے کے لیے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔